Good morning, everyone. Uh, I hope all of you guys are doing well, and I hope you understood what was given as a homework yesterday. So today we'll be learning about a new topic, and our topic is shifting of origin. This is called the origin. You know that, okay? This is the origin where 0 comma 0. So we are doing coordinate geometry. The name of the chapter is straight lines, and straight line falls under the category of coordinate geometry. And the second thing that we'll be working on, yesterday we worked on the basic things, section formula, distance formula. Today we'll be working on shifting of origin. Now this is origin, everyone knows that, okay? But why is this topic relevant to this chapter? Okay, so I'll be discussing that with you, but I'll be also telling you why is this important. Shifting of origin होता क्या है, क्यों करते हैं shifting of origin? So I'll just explain you in a very simple way. Okay, let's say this is a place, and this place is my house. Okay, this is my house. Now you might notice that if you're this is the bus stand, and every day, for example, this is my house in the campus, in the school campus, and this is Selakui, where I have to go and catch the bus and then go to my work. So this is, let's say this point is point P. This is Selakui, or I can say S. This is Selakui S. Now the problem is the distance from my house till Selakui is going to be 3.5 kilometer. All of you guys agree with me, right? But let's say, and it's gonna take a lot of time every day if I don't have a bike, or even if I have a bike, from going from my house till Selakui and then catching a bus, getting on the bus, and then traveling to my workplace. But for example, let's say this is my origin, because here is the place where I start from. My house is my origin, where I originally start from. Okay, so this is the origin. Okay, but let's say if I change my origin and I start living near Selokui somewhere. Okay, so this becomes my house. Okay, I come out of the campus, I start living near Selokui. Now you can see my the origin has been shifted. Why it has been shifted? So I can get closer to the point. Okay, now as soon as I shifted my origin, my house I shifted, it took some time shifting my house, maybe 2 days, 3 days. As soon as I shifted, the distance became small. Maybe now it is like 500 meter. My house ends, okay, it's just 500 meter. Okay, so I hope you are able to understand this. Okay, that the distance has been shortened. Earlier, from the origin, let's say the coordinates, I'm just explaining you in the form of coordinates now, okay, not in the form of distance. From my origin to this point S, the coordinates were 315 comma minus 721. These were the coordinates from origin. But as soon as I shifted the origin, the coordinates becomes more smaller now. What does the coordinate becomes? It becomes what? Let's say it becomes 5 comma minus 3. The coordinates have been shortened just because I've shifted my origin. I shifted my origin towards the point that was S. Okay, so I hope you understood the concept. Origin, we shift the origin in order to make a smaller number. Also the coordinates become less complicated otherwise, and the distance becomes less as well. Okay, so I'll explain you through this, or the formula that we are going to apply in this exercise. Let's say I have a point P. I have a point P over here, and the coordinates are x comma y. Okay, x comma y. The original coordinates according to this origin is x comma y. Okay, you know that if I draw a distance, if I draw this distance, if I just make a line like this, how much is this line? How much is this line? This is x, right? From here to here it's x. And what is from here to here, or from here to here? It's y.
तभी इस पॉइंट का नाम x कॉमा वाई है, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक x है, यहाँ से लेके यहाँ तक y है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 होता तो यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ तक 6 होता तो 5,6 होता है। ओके, सो आई हैव गॉट x दिस एंड y दिस। ठीक है, नाउ आई एम गोना शिफ्ट माई ओरिजिन। Okay, they'll give you a particular place, please shift your origin to this point. Okay, so maybe I'm shifting my origin to a place called h comma k. पहले मेरा ओरिजिन कहाँ था, 0,0 पे, सबको पता है। नाउ मैंने अपना ओरिजिन कहाँ शिफ्ट कर दिया, h कॉमा k पे। ठीक है, इसका मतलब h कॉमा k पे मैंने अपना डिस्टेंस वो कर दिया, मतलब यहां से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू है h, ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊँ ऐसे करके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है h है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से तक क्या है k। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो वेल अंडरस्टूड है सबके पास। अगर ये कोऑर्डिनेट्स h कॉमा k है तो यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक k है। ठीक है, अब ध्यान रखना सबके सब, मेरा जो ओरिजिन है चेंज हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन आई हैव दिस पॉइंट के एक डिफरेंट वो आएंगे कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहाँ पे अगर मेरा ओरिजिन यहाँ था तो ये मेरा क्या थे, कोऑर्डिनेट्स थे। जब मैंने अपना ओरिजिन चेंज किया तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, 5,-3 आया, चेंज हुए कि नहीं है। लेट्स से जो चेंज हुए वाले कोऑर्डिनेट्स है वो है x, कैपिटल X, कैपिटल Y। ओके, जो पहले वाले थे ओरिजिनल वाले थे वो थे ओरिजिनल वाले थे x, y। जो न्यू पॉइंट आया मेरा वो है कैपिटल X, कैपिटल Y। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो कैसे आएगा। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है, इसकी वैल्यू कैसे ढूंढूंगा मैं, इसकी वैल्यू ध्यान से देखना। यहाँ से यहाँ तक कितना है x, यहाँ से यहाँ तक कितना है h, तो मैं जो ये नया वाला x निकला तो इतने इतने की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, आप अपने लॉजिक लगाओ। यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 10 है लेट्स इमेजिन, और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, x माइनस h। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू आएगी, h माइनस एक्स, राइट। और उसका नाम क्या दे दिया हमने, कैपिटल X, क्योंकि यहाँ कैपिटल X आ रहा है, मैंने इसका नाम ही कैपिटल X लिख दिया। तो कैपिटल X के जो नया कोऑर्डिनेट्स आएगा वो क्या करना है मुझे, X से जो ओरिजिनल वाला कोऑर्डिनेट्स है उससे ओरिजिन के माइनस करना है h। ठीक है, y क्या आएगा मेरा, ठीक है, y आएगा मेरा y माइनस k। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक y था, ठीक है, पर यहाँ से यहाँ तक क्या था, k। तो अगर मुझे इतना इतना ढूंढना है बस, तो इस पूरे में से ये माइनस कर दूंगा, मुझे इतना इतना मिल जाएगा। तो इतने इतने की वैल्यू क्या होगी, y माइनस के, वाई माइनस के, तो क्या आ गया मेरा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी x की वैल्यू क्या है मेरे पास, h माइनस एक्स, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y माइनस के। सो दैट्स हाउ यू फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स। न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, x माइनस एच। x क्या है, ओरिजिनल जो मेरा पॉइंट था, y क्या है, ओरिजिनल जो मेरा y पॉइंट था, और h और k क्या है, h एंड k आर द ओरिजिन दैट हैज़ बीन शिफ्टेड। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट आई विल अप्लाई। ओके, और ये फॉर्मूले के साथ हम खेल भी सकते हैं, जैसे अगर मुझे ओरिजिन ढूंढना है, ओके, जैसे मुझे ओरिजिन ढूंढना है या फिर मुझे ये ओरिजिनल पॉइंट ढूंढना है, तो अगर ओरिजिनल पॉइंट ढूंढना है तो इसको x को अकेला रखूंगा, h उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस h। अच्छा, अगर मुझे y ढूंढना है, ठीक है, कि ओरिजिनल पॉइंट क्या था, तो y कितना हो जाएगा, y प्लस k, क्योंकि k उधर शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ फॉर्मूला, बट द फॉर्मूला इज सेम। ओके, अगर मुझे न्यू पॉइंट ढूंढना है या न्यू कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है तो x माइनस एच, ओके, और मुझे y ढूंढना है तो y माइनस के। Okay, so that's how we work on this. ठीक है, we'll do some questions that are related to this. Okay, let's try out some questions on this. Okay, let's see how to solve some questions. I'll be doing question example number 1. I won't be doing any questions because
There are only 6 questions in this exercise, so I want you guys to do some questions from this exercise. So example number 1 goes something like this: shift the origin to point -2, 3. Okay, so my origin needs to be shifted. Where it needs to be shifted? -2, 3 पे वो उसे शिफ्ट करना है. ठीक है, तो मतलब अब मैं सॉल्यूशन करूंगा. मेरे पास 3 कैटेगरीज होती है. एक h, k. ये क्या होता है? जो ओरिजिन हम शिफ्ट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं. ठीक है, ओरिजिन शिफ्टेड. ओके, दूसरा होता है x, y, स्मॉल लेटर x एंड स्मॉल लेटर y. ये क्या होता है? पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट. ओके, जब हमने शिफ्टिंग से पहले जो पॉइंट लिया था उसको बोलते हैं x, y. ठीक है, शिफ्टिंग जब हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसको बोलते हैं हम कैपिटल x, y. ठीक है, तो आफ्टर शिफ्टिंग coordinates of the points. Okay, so right now shift the origin to point -2, 3. मतलब h, k कितना दे रखा है मुझे? -2, 3. h क्या है? -2. k क्या है? 3. ठीक है, एक्सेस रिमेनिंग टू द पैरेलल ओरिजिन एक्सेस. ठीक है, हमें पैरेलल रखना है जो भी ओरिजिन शिफ्ट करेंगे. व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट? न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये न्यू कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ पॉइंट और ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो मतलब मुझे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वो बोल रहे हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, -2. isn't it? So I have to find x, y, capital X, capital Y. You know the formula. What is the formula? Formula says x equals to x minus h and y equals to y minus k. So if you have a look over here, x equals to x minus h. x क्या है यहाँ पे हमारे पास? स्मॉल x क्या है? 1. ठीक है, 1 -2. ओके, तो -2. सो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. y की वैल्यू क्या है आपके पास? y कैसे ढूंढोगे? y इज इक्वल्स टू, देखोगे कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y. स्मॉल y क्या है? -2 -3, तो कितना आ जाएगा? -5. सो व्हाट्स माय आंसर? जो मेरा कैपिटल X और कैपिटल Y है उसका आंसर क्या है मेरे पास? 3, -5. So where is the point lying now? 3, -5 according to the new origin. According to the new origin. Okay, according to the new origin मेरे पे coordinates क्या आ गए? 3, -5. Okay, because my origin has been shifted ahead. Okay, I hope you understood this, right? So that's how you'll do some questions. I'll also do some couple of course questions so that you can understand how things are done. Okay. Okay, let's start solving example number 3. Okay, let's start solving this. So what does example number 3 says? Example number 3 says transform x square plus y square minus 6x plus 10y minus 2 equals to 0 to parallel axis through the point is given 3, -5. Whenever it says parallel axis through 3, -5, it means it's saying change your origin to this. चेंज योर ओरिजिन टू 3, -5. पर ट्रांसफॉर्म ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये इक्वेशन जा रही है, आपको पता है कि जो आपका ओल्ड, ओके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर आपको देखना है किस तरीके से करना है आप वो बुक से भी देख सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. अगर आप देखें आपके ओल्ड जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम? ऑफ अ पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट x, y. न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल X, कैपिटल Y. अच्छा, ओरिजिन कैसे लिखते हैं हम लोग? ओरिजिन जब चेंज हो जाता है तो उसको क्या लिखते हैं? h, k. सो व्हाट इज गिवन टू मी? सी व्हाट इज गिवन टू मी इज ओरिजिन जो चेंज करना है. तो मुझे क्या दे रखा है? जो ओरिजिन चेंज करना है 3, -5. सो इट मीन्स व्हाट डू आई नो? आई नो h इज 3, k इज -5. आई नो बोथ ऑफ देम. बट अब ये ओरिजिन चेंज हुआ तो आपने देखा जो इक्वेशन है कौन सी फॉर्म में है? ये ओल्ड वाले फॉर्म में है, एक्स और वाई को लेके है ये. पर
मुझे इसको चेंज करके न्यू फॉर्म में लेके आनी है, जो जिस ताकि इसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, क्योंकि देखो अगर मेरा ये ओरिजिन है, ठीक है, मैं ओरिजिन शिफ्ट करता हूँ, मेरी ये ओरिजिन है तो मेरी ये वाली लाइन है, ये लाइन जा रही है जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 0। इस लाइन का नाम है एक्स स्क्वायर, ये है। पर मैं ओरिजिन शिफ्ट कर दूंगा, अब अगर मैं ओरिजिन शिफ्ट कर दूंगा तो इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये अब एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, ये कैपिटल एक्स के फॉर्म में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ ये कैपिटल एक्स के फॉर्म में आ जाए, तो मैं देखूँगा एक्स और वाई की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ मैं। तो मैं अपने फॉर्मूले के पास जाऊँगा। फॉर्मूला क्या कहता है मुझको, फॉर्मूला ये कहता है एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, ठीक है, एंड कैपिटल वाई इक्वल्स टू वाई माइनस के, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अ लुक ओवर हियर, तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो x की वैल्यू इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, ओके, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू वाई माइनस के और माइनस तो प्लस 5। तो अगर मैं इसकी स्मॉल x की वैल्यू ढूंढूँ, स्मॉल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल x प्लस 3, ठीक है। स्मॉल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल y माइनस 5। अब जो भी इक्वेशन मिली है मुझे, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये ओरिजिनल इक्वेशन है जब मेरे पास ये ओरिजिन था। अब मेरा ओरिजिन चेंज हो गया तो इसके जो ये वेरिएबल्स है ये भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं x की जगह क्या लिखूँगा, x की जगह लिखूँगा मैं x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y कैपिटल Y माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 3 प्लस 10, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, अब ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट खोलने के बाद क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9, राइट, फिर क्या हो जाएगा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y माइनस 6x माइनस 18 प्लस 10y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। आपको ही समझ आ रहा होगा क्या होना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप लोग क्या कर सकते हो, लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हो, जैसे 6x और ये 6x कैंसिल आउट, ठीक है, 10y और ये 10y कैंसिल आउट, और नंबर्स को देख लो, अभी 25 है, 25 और 9 34, 34 34 और ये कितना हो जाएगा 68। तो 68 में से आप 34 माइनस करोगे तो माइनस 36 आएगा। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग 36 को उधर शिफ्ट कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो आपकी ये इक्वेशन आई, जो इक्वेशन आई आपकी, ये किस फॉर्म में आई, ध्यान से देखो, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, और ये नया कोऑर्डिनेट्स है। मैंने बताया था आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो आपका आंसर किस में आ गया, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, क्योंकि हमारा ओरिजिन शिफ्ट हुआ था, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज कीप लुकिंग एट द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड कीप लुकिंग एट द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, यू विल अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे, okay, I'm sure about that. Okay, let's see another example. Example number 5, reduce the equation, this equation is given, और आप समझ सकते हो इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में गिवन है, स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है, स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के रूप में गिवन है। जब हम ओरिजिन शिफ्ट नहीं किया गया है तो ये उस फॉर्म में है, ओके। तो जिस तरीके से मैं आपको थोड़ी सिंपल कर देता हूँ क्वेश्चन, टू द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के, मतलब जब मेरा आंसर आएगा तो किस फॉर्म में होना चाहिए, न्यू कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होना चाहिए। वो सेम पॉइंट तो वही रहेगा, पर जब हम ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे तो कोऑर्डिनेट्स नए बन जाएंगे, ठीक है, बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द सूटेबल पॉइंट्स। तो आप सबको फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला पता है आपको, ये पता है कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एच
capital Y equals to y minus k. ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ताकि आप x की वैल्यू वहाँ डाल सको। तो x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस एच, और y की वैल्यू क्या होगी, y प्लस के, राइट। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। लेट्स कीप द x एंड y की वैल्यू इन दिस। ओके, सो एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 4, y की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर y प्लस के होल स्क्वायर, ओके, माइनस 6x प्लस एच, ओके, एंड देन माइनस 8, y क्या है आपके पास, y प्लस के minus 12 equals to 0. Okay, so I changed everything because you know x comma y, capital Y are the new coordinates, है ना। सो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखें, तो आपके पास क्या है, ये ब्रैकेट्स हैं, राइट। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व जब करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2h माइनस, ओके, स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2h माइनस 6x प्लस 8k माइनस 8 कैपिटल Y प्लस h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सब कैसे आएगा, आप सबको पता है ब्रैकेट कैसे खोलना है, ब्रैकेट कैसे वो करना है, आप सबके पास आंसर आ जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, मुझे किस फॉर्म में लेके आना है, अगर मैं अपना क्वेश्चन देखूँ मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू के मतलब कांस्टेंट टर्म, नंबर होना चाहिए इस साइड। अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, वाई स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर में ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो तो क्या है, बी 4 है। बाकी यहाँ एक्स और वाई तो दी नहीं रखा है इस इक्वेशन में, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो 0 है, क्योंकि एक्स है ही नहीं, जो इक्वेशन हमें लाके आने बोली है उसमें एक्स है ही नहीं, तो जो भी एक्स के साथ है मतलब 0 है, मतलब 2h माइनस 6 क्या है आपका 0। जो भी y का कोफिशिएंट है वो क्या है, 8k माइनस 8 क्या है आपके पास 0। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप h और x की वैल्यू ढूंढते हैं इसमें, तो h और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, h और x की नई वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ देखना ध्यान से, h 2h इक्वल्स टू 6, h इक्वल्स टू 3, ठीक है, और k की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपके पास, 8k इक्वल्स टू 8, k इज इक्वल्स टू 1। तो h इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 1, आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, देखो मुझे ये और ये तो चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ एक्स स्क्वायर वाली ग्रुप चाहिए, वाई स्क्वायर वाली ग्रुप चाहिए, पर मुझे ये नहीं चाहिए, और के चाहिए, के मतलब कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें आप क्या कर दोगे, आप इसमें किसकी वैल्यू डाल दोगे, एच और के की वैल्यू डाल दोगे। जब आप इसमें एच और के की वैल्यू डालोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे निकल के आपके पास 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 माइनस 25। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इनको तो लेना ही नहीं है मुझे क्योंकि इसके हिसाब से ये है ही नहीं, ठीक है, माइनस 25। जब मैंने इसमें वैल्यू डाली एच और के की, एच की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 1, तो और इक्वल्स टू 0, 25 उधर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। Okay, so that's how you do this type of question. I hope you understood. If you didn't, please try looking at the video again and again, and that's how you'll understand. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed and you understood something. Please do the exercise. There are not much questions, only 6 questions that you have to do. Thank you so much.